Hello students, today we are going to start with the third part of expansions. Here we are going to discuss about some problems which we face while doing expansions. Let us discuss. We have a question over here. If x plus y minus z is equal to 4 and x square plus y square plus z square is equal to 38, find the value of x, y minus yz minus zx. Let us see how we are going to do this question. The question says it over here that we have been given the some values over here. X plus y minus z is equal to 4, x square plus y square minus plus z square is equal to 38, and we have to find the value of x, y minus yz minus zx. First of all, when we look at the question, we have to relate the terms which are there. Okay, we must think and find out which formula will be suitable over here. First of all, see there are three terms over here. We have a formula which relates all of them. There is a square over here, and their terms are being multiplied. A formula which is very much peculiar to it, which is much related to it, that will be used over here will be a plus b plus c whole square. That is a square plus b square plus c square plus 2 within the bracket ab plus 2 within the bracket ab plus bc plus c. This formula can be used over here. Let us use this formula. X plus y minus z whole square is equal to, how much will it be? X square plus y square plus minus z whole square. Now, is it clear? If you have any problem, what you can do is, at the starting of it, you can just make some corrections to it. You can write minus z in the bracket if you want to write. Then it will be very much clear to you that x stands for a, y stands for b, and minus z stands for c. Okay, a square, b square, c square plus 2 within the bracket. What will it be? It will be multiplication of these two, a and b. That is the first two over here, a b, x y. Then the multiplication of this and this. What will be the multiplication of this till and this will give? Just have a look over here. Y into minus z. Is it okay? Then this and this plus minus z into x. To x. Okay. This much is what we are getting it over here. Just move a little ahead. X plus y minus z. Now we can write it in the way we were supposed to write. It becomes x square plus y square, and I've already told in the previous session that whenever there is a negative number and you are have an even power over there, it always comes out to be positive. So x square plus y square, and over here we get it over here as z square plus 2 within the bracket. What we get is xy minus plus is minus yz. It is minus plus minus zx. Okay, we have it over here. Let us put the values now. Okay, from the question now we can see that we have to find out the value of this. We have to find out the value of this. Let us see how we are going to find out this value. Okay, we are not going to disturb this. Write the way it is written over here without disturbing it, since we have to find its value. Okay, the value of this has been given as 38. Write its value 38. Then the value of x plus y minus z is given over here. It is 4. Let's write 4, and what we have it over here? It's a square over here. 4 square is 16 is equal to 38, and write whatever is given over here, xy minus yz minus zx. It becomes 16
minus 38 is equal to 2. We have brought 38 on this side and therefore it becomes negative. Xy minus yz minus zx. 16 minus 38, it is how much? Minus 22 is equal to 2 within the bracket xy minus yz minus zx. We have to take 2 on the other side because we have to find the value of this. It has no 2 before and therefore we have to take 2 on the other side. It becomes minus 22 divided by 2, and you have to write the other things the way they are given. It becomes minus 11, and therefore the value of this whole, that is xy minus yz minus zx, is how much? You're getting it over here, is minus 11 is the value of this particular thing. Okay, move on to the next question now. Let's move on now. The second question says it over here, a plus b is equal to 10 if a plus b is equal to 10 and a square plus b square is equal to 58. Find the value of a cube plus b cube. The question says if a plus b is equal to 10 and a square plus b square is 58, find the value of a cube plus b cube. Let us see how we are going to do this question. The question says a plus b is equal to 10. Let us write the values. Okay, before writing anything, just think what can we relate to. Any formula which has all the three terms over here? No, we don't have. Okay, what we can do is we have a formula which has all three terms, but it will be much better that we apply the formula that the a plus b whole cube. That will be much easy for us. Just apply the formula of a plus b whole cube. A plus b whole cube is what we have, a cube plus b cube. We have a plus b, we are using a plus b, then we will be getting a cube plus b cube plus 3ab within the bracket a plus b. Now in the formula, just see, we have the value of a plus b, that is 10. We will be able to write. We have to find this term over here. Okay, we will not be disturbing this. Okay, then already we have the value of a plus b. We already know the value of a plus b. What we don't know over here, we do not know the value of a b. That is a multiplied by b. We do not know its value. We will be able to find out by using one of the formula, by using this and this. We will be squaring this and we will be able to find out the value of AB. Okay, a plus b whole square. What it gives is a square plus b square plus 2ab. Now from here, whatever the value of AB will be, we are going to put it over there, and then we will be putting the other values of a plus b, and we will be able to find out this thing. That is a cube plus b cube. We will be able to find out. Let us see a plus b whole square. The value a plus b. What is the value of a plus b is 10. That is being squared over here. We have been given the value of a square plus b square, that is 58 and 2ab. We'll be able to find out the value of ab there. Okay, 10 square, it is 100. 58 plus 2ab. Before moving further, I have told you previously even, learn out the squares till 30 and cubes till 20. It will be much beneficial to you. 100 minus 58 is equal to 2ab.
Taking 58 on this side, now what it becomes is 48, 42 is equal to 2ab. Now taking 2 on the other side, ab is equal to 42 divided by 2, that is how much it comes out to be is 21. So the value of ab is 21, and therefore we will be putting this value of ab over here, that is here. Let us put all the values now. Now substitute all the values. Substituting all the values. Taking the values. Okay. What is the value of a plus b? It is 10. Whole cube. Okay. We have to write this as it is because we don't know its value and we have to find out according to the question. And plus 3 is written over there. Then we have AB. AB, the value of AB we have already found out. It's 21 multiplied by 21. A plus B. A plus B, what is the value of A plus B? It is 10 over here. It becomes how much? 1000 is equal to A cube plus B cube plus 630. 630. Huh? 630. Then we have to just take 630 on this side. 1000 minus 630 is equal to A cube plus B cube. A cube plus B cube is equal to 1000 minus 630, 400, 370. It becomes 370. Therefore, we have been able to find out the value of 3 A cube plus B cube, that is 370. Let's move on to the next question. If the sum of the two numbers is 11, and the sum of their cubes is 737, find the sum of the squares. Let us start with the question now. Question says it over here, sum of the two numbers is 11. क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम का मतलब क्या हो गया? प्लस. तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 11, यानी कि वी हैव टू अज्यूम टू नंबर्स ए एंड बी. यहाँ पे दो नंबर्स को हम लोग अज्यूम करेंगे, ए और बी. यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले मानेंगे यहाँ पे लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी. पहले यहाँ पे हम लोगों ने दो नंबरों को मान लिया, ए और बी हो गए. यहाँ पे सम कह रहा है तो यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे. यहाँ पे तो सब में कह रहा है दो नंबरों का सम यहाँ पे कितना हो रहा है? 11 हो रहा है. यानी कि पहला नंबर ए हो गया, दूसरा नंबर बी हो गया, और दोनों का सम कितना हो गया? यहाँ पे हाउ मच विल इट बी? इट विल बी 11. यहाँ पे 11 सम हो गया. उसके बाद में यहाँ तक मेरा यहाँ पे कंडीशन कंप्लीट हो गया. तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, देखेंगे व्हाट वी हैव टू डू. सम दैट इज अगेन सम का मतलब क्या हुआ? प्लस हुआ. तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे? प्लस का साइन देखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लस का साइन फिर से यहाँ पे लगाया. सम ऑफ देयर क्यूब्स. क्यूब क्या होता है? पावर 3, और इस पे भी पावर क्या लगेगी? 3 लगेगी. इज 737. क्वेश्चन. ओके, इट इज इक्वेशन 2.
यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि ए और बी के क्या है, सम है। सम किसका सम होना है, स्क्वायर्स का सम, यानी कि ए और बी के स्क्वायर का यहाँ पे सम हम लोग को निकालना है। तो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। This third thing has to be find. Now let us see. A plus B 11, A cube plus B cube 737, A square plus B square is equal to this. हम लोग देखेंगे कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद में हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 11, ये हम लोग को दिया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 737 ये दिया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग को निकालना है। हम लोगों ने अभी अभी एक फॉर्मूला लगाया था ए प्लस बी का होल क्यूब, वही सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था वहां पे, ए प्लस बी का होल क्यूब हमारा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, a प्लस b। So this formula can be used to where for doing this type of question also. Okay, what is the value of a plus b? It is 11 whole cube. Okay, what is the value of a cube plus b cube? It is 737 plus 3ab. What we don't know, हम लोग को यहाँ पे किसकी वैल्यू नहीं फाइंड मालूम है, ab की वैल्यू यहाँ पे मालूम नहीं है, तो हम ab की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ab। तो what will be the value of ab? Let us find out from this very part. And a plus b इसकी वैल्यू हम लोग को क्या मालूम है, हाँ मालूम है 11 है, हम यहाँ पे 11 रख देंगे। ओके, 11 क्यूब 1331 is equal to 737 plus 3 multiplied by 11 that is 33 ab। कितना हो गया, हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लाएंगे नंबर्स को, वेरिएबल एक साइड रहेगा, तो 1331 माइनस 737 सबट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 1331 माइनस 737, यहाँ पे क्या आएगा 594 हो गया, इज इक्वल टू 33 ab। ab यहाँ पे लिख दो और 33 नीचे ले आओ। 11 3s 11, 5s 4s and 3 18s। ab की यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 18, ab की वैल्यू यहाँ पे आई है हमारी 18, और ab की वैल्यू जब यहाँ पे 18 आई है, हम लोग करेंगे क्या, हम उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे, ये और यहाँ पे ab की वैल्यू हम लोग यहाँ पे देंगे। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे। ये करने के बाद में हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, a प्लस बी सॉरी होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b कितना दे रखा है मुझको, 11 दे रखा है, तो 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, तो हम लोग इसको डिस्टर्ब यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2ab। तो 2 तो यहाँ पे हो गया, ab कहाँ है, ab की तो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी थी वहां से 18, तो वो 18 वैल्यू हम लोग ab की जगह यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे हमारा ये है 11 स्क्वायर 121 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना आया 36। अब हम लोग 36 को एक साइड ले आएंगे, तो 121 माइनस 36 ये निकलेगी किसकी वैल्यू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो 121 माइनस 36 इट इज 85, इसकी वैल्यू क्या आएगी 85, हमारी यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 85। और एक बार करने के बाद में हर कोई अपना क्या करेगा, अपने कैलकुलेशन चेक कर लेगा। जैसे कि ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोगों ने करा है, ये कैलकुलेशन हम लोगों ने सिंपल से यहाँ पे करा है,
तो ये कैलकुलेशंस करेंगे, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करेंगे हर क्वेश्चन करने के बाद में, ओके क्योंकि सिली मिस्टेक्स तो हर किसी से होती हैं, तो यू हैव टू चेक आउट वेदर यू आर डूइंग इट करेक्टली और नॉट एट द एंड, ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। If the number p is 7 more, क्वेश्चन है हम लोग का, if the number p is 7 more than the number q and the sum of the squares of p and q is 85, find the product of p and q. Find the product of p and q. हम लोग यहाँ पे देखते हैं, let me check out the question. If the number p is 7 more than the number q and the sum of the squares of p and q is 85, find the product of pq. Okay, let us start. Number p, let us start. Number p and this means equal to 7, 7 more means plus sign plus than the number q. Q will be written over here. From here what we can do is, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि p minus q is equal to 7 हो जाएगा, p minus q is equal to 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारी क्या होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है यहाँ पे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बन गई एंड सम, सम का मतलब फिर से क्या हुआ, प्लस, प्लस हो गया, सम किसका है यहाँ पे, स्क्वायर्स ऑफ p एंड q, यानी कि p का एक स्क्वायर होगा और q का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे कितना है, इसका मतलब फिर से इक्वल टू 85, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन, p और q का, तो यहाँ पे pq इज इक्वल टू कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये तो हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये सब आता है, हमारा यहाँ पे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसा है, इसमें यहाँ पे p माइनस क्यू होल स्क्वायर में सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लगाएंगे तो वी गेट इट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, तो p माइनस क्यू कितना है, 7 है, 7 का होल स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 85 है, यहाँ पे -2 और पी क्यू की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। 7 स्क्वायर 49, 85 -2 पी क्यू हम लोग को करना है, यहाँ पे इतना हो गया। हम लोग करेंगे क्या, अब पी क्यू हम लोग यहाँ पे एक साइड ले जाएंगे, इधर ले गए पी क्यू हम, और यहाँ पे क्या हुआ 85 -49, -2 पी क्यू था, हम लोग उसको उधर ले गए हैं और 49 को उधर ले गए हैं, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 85 माइनस ये 36 आ जाएगा,
वैसे तो मेंटल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंटल कैलकुलेशन में अगर आप सही नहीं है तो एक रफ कॉलम बनाइए और यहाँ पे आप माइनस कर दो। माइनस करने पे क्या आएगा, जो मैंने लिखा है वही आएगा 36 यहाँ पे। सही है। अगर आपका मेंटल कैलकुलेशन इतना अच्छा नहीं है तो आप आराम से वहां पे करिए, आपका आंसर लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। 2pq यहाँ पे है, 2 आप नीचे ले जाओगे तो यहाँ पे pq की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36/2 कितना आया 18। तो यहाँ पे pq is equal to 18 is the answer that we are getting it. हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ a by b, if a by b is equal to b by c, prove that a plus b plus c, a minus b plus c is equal to a square plus b square plus c square। देखते हैं एक बार क्वेश्चन यही है, हाँ क्वेश्चन हमारा यही है। हम लोग देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। हम लोग को अब यहाँ पे प्रूव करना है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, ये हमारी यहाँ पे एक तरीके से एक दे रखा है हिंट, इसको इस्तेमाल करके, इस कंडीशन को इस्तेमाल करके हम लोग को वो वैल्यू यहाँ पे लानी है, LHS और RHS को यहाँ पे प्रूव करना है कि ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सेम है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। जब भी इस तरीके की कुछ कंडीशन होती है हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं किसी एक दूसरे नंबर पे। हमने अज्यूम कर लिया इट इज इक्वल टू के, लेट a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू के, अज्यूम यहाँ पे कर लेंगे। और अज्यूम करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे कि देखो क्या होगा, a बाई बी इज इक्वल टू के एक बार होगा, यहाँ पे करके दिखा देता हूं मैं, a बाई बी इज इक्वल टू के एक बार होगा, और एक बार a बाई बी इज इक्वल टू के हुआ, और एक बार b बाई सी इज इक्वल टू के होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, b के, और b की वैल्यू क्या आई, c के। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या आई है, b, और b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c। अब हम लोग करेंगे क्या, हम हर चीज को यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ c निकालेंगे। यहाँ पे क्या c दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या c दिख रहा है, हाँ, यानी कि ये सही है। अब यहाँ पे b की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, फिर से ये यहाँ पे b की वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू क्या है, c के, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख देंगे। a इज इक्वल टू, b की जगह क्या लिखेंगे, c के, a इज इक्वल टू सी के स्क्वायर, यानी a की ये वैल्यू हो गई है और b की हमारे पास में ये वैल्यू। तो इन दो वैल्यूज को इस्तेमाल करके अब हम इसको प्रूव करेंगे। इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे LHS होगा, सॉल्व करेंगे, और एक हम RHS यहाँ पे बाद में सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे LHS सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, एज इट इज वॉट एवर हैज बीन गिवन, हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रखेंगे सी के स्क्वायर, b के रखेंगे सी के, और c की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ, वो एज इट इज सी वैसे ही लिखा रहेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, चलो देखते हैं। a की जगह यहाँ पे हुआ हमारा सी के स्क्वायर, प्लस b की जगह हुआ सी के प्लस सी। तो यहाँ पे a की जगह फिर से वही वैल्यू आई सी के स्क्वायर माइनस, और b की वैल्यू क्या है हमारी, सी के प्लस सी होगा। एक बार चेक कर लेंगे वैल्यू रखने के बाद में हम लोग यहाँ पे a सी के स्क्वायर, b सी के प्लस सी, a सी के स्क्वायर, b सी के, एंड सी की जगह सी ही रहा।
अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो सी यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, और सी कॉमन लेने के बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सी कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, ये यहाँ पे बचा। यहाँ से जरा सी कॉमन लो, और सुनो एक चीज मैं बताऊं तुम लोगों को कि जब भी यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, व्हेन देयर इज नो साइन इन बिटवीन, कोई साइन नहीं है, तो यानी कि ये साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पे सी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे क्या है बचा, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हर एक नंबर जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम लोग एकदम बाहर लिख देंगे। यहाँ पे सी और सी मल्टीप्लाई होकर के दे विल बिकम सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ, के स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे क्या, एक चीज देखेंगे, के स्क्वायर और 1, के स्क्वायर और 1 पॉसिबल है ना, उनको एक साइड लिख देते हैं, के स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट लगा लेते हैं, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। यहाँ पे भी के स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस। यहाँ पे अगर हम लोग एक बात ध्यान से अगर देखें तो ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, लेकिन साइन का डिफरेंस है। एक ऐसा फॉर्मूला जब है यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, देखो यहाँ पे ये इसको हम लोग a मान लें, ये क्या हो गया प्लस b, और यहाँ पे क्या है a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला। सी स्क्वायर एसिड बाहर लिखा रहेगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म यहाँ पे एक ही जगह क्या लिखा है, के स्क्वायर प्लस 1, तो के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, के, उसका स्क्वायर। ओपन करेंगे हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स, तो क्या आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर पावर 4 आ जाएगी, के स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा पावर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, यानी कि 1 ही आएगा, प्लस 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सी स्क्वायर बाहर है ब्रैकेट के, तो यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर 4 1 रहेगा यहाँ पे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे के स्क्वायर, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है ना, ये के स्क्वायर हो जाएगा। अब आरएचएस देखते हैं हम यहाँ पे, आरएचएस हमारा यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ए की वैल्यू यहाँ पे थी सी के स्क्वायर, यहाँ पर रख देंगे सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, प्लस बी की जगह क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे, बी की जगह यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी सी के है, वहाँ पे सी के रखेंगे हम लोग, सी के का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर होगा तो दोनों का अंदर स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर हो गया, और ये के टू द पावर 4 हो गया। यहाँ पे ये इसका दोनों का स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर क्या यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, के की पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। क्या देखते हैं हमारा एलएचएस और आरएचएस मैच कर रहा है, एलएचएस पूरा के टू पावर 4, के टू पावर 4, के स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर बाहर है, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यहाँ पे लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू, यहाँ पे लास्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस और आरएचएस हमारे यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, एंड मींस ट्रू।